Okay. So new topic is competitive electron transfer reaction. Okay. Place a strip of metallic zinc in the aqueous solution of copper nitrate solution as shown in this figure. You can see copper nitrate solution has a which color? ब्लू कलर, और उसमें आपने जिंक रॉड रख लिया, जिंक का स्ट्रिप रख लिया. आया समझ में? ओके. फॉर अबाउट 1 hour you may notice that the strip becomes coated with the reddish metallic copper and the blue colors of the solution going to be disappear like this. Yes or no? Later on the final stage वो blue color पूरा निकल जाएगा, है ना? Okay. How it is possible? Is it possible? So हमने नोटिस किया कि strip become the coated with the reddish metallic copper and the blue color of the solution disappear. That is due to the formation of which ion? Zn+2 ions among the products and can be easily judged when the blue colors of the solution due to the Cu+2 ion is disappeared. सॉल्यूशन का कलर ब्लू दिख रहा था, वो उसकी वजह से क्योंकि उसमें पहले Cu+2 आयन प्रेजेंट थे. अब हम बोल सकते हैं कि जिंक कन्वर्ट्स इनटू Zn+2 आयन, तो उसका ब्लू कलर क्या हो गया? डिसअपियर हो गया. Zn+2 आयन आने की वजह से वो हमें पहले से बाय ऑब्जर्वेशन से भी पता चल जाएगा. बट फिर भी अगर हमें उस पे भरोसा ना हो तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू परफॉर्म अ टेस्ट which give you Zn+2 presence, that if hydrogen sulfide gas is passed through the colorless solution containing Zn+2 ion appears the white zinc sulfide ZnS that can be seen on making the solution alkaline with. पहले हाइड्रोजन सल्फाइड गैस पास करना है, फिर उसको अमोनिया वाला सॉल्यूशन बनाना है. आपको व्हाइट कलर के कौन से सॉल्ट दिखेंगे? जिंक सल्फाइड. और दिस टेस्ट गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रेजेंस ऑफ Zn+2 आयन. और ऐसा हुआ भी से Zn+2 आयन मिले तो हम मान लेंगे कि यस, वो जो सॉल्यूशन लास्ट में कलरलेस सॉल्यूशन मिला, उस कलरलेस सॉल्यूशन में कौन से आयन हो गए? Zn+2. अब अगर टोटल रिकॉल करेंगे इसको तो हम कुछ इक्वेशन के फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं. वी हैव द Zn मेटल, जिंक मेटल, तो Zn ले लिया हमने. वी हैव अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर नाइट्रेट मतलब Cu+2 आयन, तो हमने Cu+2 ले लिया. एंड अगेन दैट Cu+2 deposited as a Cu on the zinc surface. So Cu+2 converts into Cu and that solution become of ZnSO4. Sorry, over here Zn nitride, zinc nitride in short. तो Zn+2 ion there is in a solution जो हमने ट्रेस H2S से white precipitate से confirm भी किया. Yes or no? तो ultimately zinc converts into Zn+2 and Cu+2 converts into Cu. तो zinc losing the electron and forming the positive ion and Cu+2 taking 2 electrons and forming the Cu1. आया समझ में? तो this losing and gaining electron is considered as a oxidation and losing electron मतलब oxidation, gaining electron मतलब reduction. That means reduction and oxidation take place simultaneously, and that's why it is considered as a which reaction? Redox reaction. So in this reaction, zinc lost the electrons and formed the Zn+2 ion. Therefore, zinc is oxidized. Evidently, now zinc is oxidized and releasing the electrons. Something must be reduced. कोई तो वो इलेक्ट्रॉन लेगा ना, तभी तो जिंक ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए. तो accepting the electron lost by the zinc, copper ion reduced by the gaining the electron from the zinc. और वो हम इस तरह से समझ सकते हैं जो मैंने ऑलरेडी बता दिया. Zinc release the 2 electron and convert into Zn+2. Cu+2 gaining the 2 electron and converts into Cu. आया समझ में? आया ना? तो this is known as losing and gaining of electron. At this stage, we may investigate the state of equilibrium for reaction represented by the equation. For this purpose, let us place a strip of metallic copper. अब हमें क्या रिप्रेजेंट क्या टेस्ट करना है? इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम किसके लिए आता है? रिवर्सेबल रिएक्शन के लिए. किसके लिए आता है? मतलब कि Zn plus Cu+2 converts into Zn+2 plus Cu. क्या रिवर्सिबल रिएक्शन पॉसिबल है? दैट मीन्स कि Cu+2 के Zn+2 के कॉन्टेक्ट में क्या रखेंगे? Cu, कॉपर स्ट्रिप रखेंगे. तो क्या वो कलर जो कलरलेस वो सॉल्यूशन जो कलरलेस बन गया था, क्या वो कलर सॉल्यूशन बनेगा ब्लू कलर? वो हमें टेस्ट करना है. तो फॉर दैट व्हाट वी आर गोइंग टू डू, अगेन मैंने बताया वैसे मेटालिक कॉपर स्ट्रिप लेंगे और उसको किसके अंदर रखेंगे? पहले हमने कॉपर वाला सॉल्यूशन लिया था, उसके अंदर जिंक रॉड रखा था. अब उल्टा यानी कि रिवर्स रिएक्शन चेक करने के लिए हमने जिंक वाला सॉल्यूशन लिया और उसमें क्या रख दिया?
कॉपर, क्या रख दिया, कॉपर स्ट्रिप। तो नो विजिबल रिएक्शन इज नोटिस्ड एंड अटेम्प्ट टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ विच आयन। सबसे पहले तो हमारा ऐसा एजम्पशन था कि अगर रिवर्स रिएक्शन होता तो वो जो कलरलेस सॉल्यूशन था जिंक सल्फेट का, वो ब्लू कलर में सॉल्यूशन कन्वर्ट होता। कैसे, कौन से कलर में, बट कलर चेंज हुआ नहीं, मतलब कि पहले तो हमें कोई विजिबल इफेक्ट दिखने मिली नहीं। आया समझ में। नाउ अगर हम आगे की बात करें तो दूसरा Cu+2 के डिटेक्शन की बात करते हैं। जैसे हमने Zn2+ को डिटेक्ट किया था बाय पासिंग द H2S gas and emanating the solutions we will get the white color precipitate salt, yes or no। तो हमने वहां पे Zn+2 का इस तरह से प्रेजेंस नोट डाउन किया था। अगर Cu+2 एज अ कॉपर सल्फाइड प्रेजेंट होगा तो वो ब्लैक कलर दिखाएगा। कौन सा, ब्लैक। तो देखते हैं, बाय पासिंग द H2S gas through the solution and produce a black color cupric sulfide but does not Cu2S ब्लैक कलर का फॉर्म हो, सॉरी Cu2S नहीं, Cus ब्लैक कलर का फॉर्म होना चाहिए था लेकिन मिला नहीं। इसका मतलब कि Cu जो है वो बना ही नहीं, इंस्टेड Cu+2 जो है वो बना ही नहीं, यानी कि Zn+2 के तौर पे ही प्रेजेंट है। मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। विच रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, ओके, एंड दैट्स व्हाई cupric sulfide has such low solubility that this is an extremely sensitive test at the amount of Cu+2 is formed cannot be। ये टेस्ट ऐसा नहीं था कि वैसा तैसा, थोड़ा सा भी Cu+2 प्रेजेंट होता ना तुरंत ब्लैक प्रेसिपिटेट्स मिल जाता, लेकिन एक भी ब्लैक प्रेसिपिटेट्स मिला नहीं, मतलब कि थोड़ा सा भी रिएक्शन हुआ नहीं है। एंड वी thus conclude that state of equilibrium of this reaction gives favor to the product over the, मतलब कि ये जो इक्वेशन है वो एक ही डायरेक्शन में होगा, मतलब कि Zn in contact with Cu+2 ion converts into Zn+2 plus, बट उल्टा रिएक्शन Zn+2 इन कॉन्टैक्ट विथ Cu पॉसिबल नहीं है। आया समझ में, आया ना। चलो अगर इसको थोड़ा और आगे बढ़ा दे तो अब हम कॉपर मेटल लेते हैं, लेकिन वो किसके कॉन्टैक्ट में रखते हैं, जैसे अभी हमने ZnSO4 के कॉन्टैक्ट में रखा था वैसे हम कॉपर को सिल्वर नाइट्रेट के कॉन्टैक्ट में रखते हैं। एंड अरेंजिंग द सेटअप एज शोन इन द फिगर, जैसे हमने एक फिगर अभी देखा था वैसे दूसरा फिगर देख रहे थे। तो जब हमने AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया, इट्स अ कलरलेस, और उसके अंदर देखो ब्राउन कलर का कॉपर स्ट्रिप है ना, कुछ टाइम के बाद उसके ऊपर सिल्वर कलर की लेयर लगेगी और उसके बाद अगेन थोड़ी ज्यादा लेयर लगेगी, और जो सॉल्यूशन जो तो एकदम ट्रांसपेरेंट था, पहले थोड़ा सा ब्लू हुआ, लाइट ब्लू, एंड देन लास्ट आफ्टर 1 आवर्स वो क्या हो गया, डार्क ब्लू हो गया। इट इंडिकेट्स Cu+2 फॉर्म हुए, किसके अंदर फॉर्म हुए, सॉल्यूशन के अंदर। तो सॉल्यूशन के अंदर AgNO3 सिल्वर था, वो सिल्वर किसके ऊपर आ गया, कॉपर स्ट्रिप के ऊपर आया कि नहीं, ओके, उसको एक्सप्लेन करना है। देन द सॉल्यूशन डेवलप्स द ब्लू कलर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ विच आयन, Cu+2 आयन। अगर मैं इसको इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहूं तो मेरे पास AgNO3 का सॉल्यूशन था सिल्वर नाइट्रेट, उसमें से मेरे पास कौन से पॉजिटिव आयन बचेंगे, Ag+, जिसके अंदर मैंने कॉपर की स्ट्रिप रखी थी, बाद में सॉल्यूशन ब्लू कलर का हुआ, मतलब कि वो क्या बना होगा, Copper+2, और कॉपर की स्ट्रिप पे सिल्वर की प्लेटिंग हुई, मतलब वो सिल्वर बना होगा। Ag+ क्या बना होगा, सिल्वर। सिंपली देखे तो Cu कन्वर्ट्स इनटू Cu+2 बाय लूजिंग, पर इनिशियली हमारे पास Ag+ था, उसमें से Ag बनेगा, अगर एक Ag+ है तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, बट टू बैलेंस द गेन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन वी हैव टू मल्टीप्लाई विद 2, तो 2 Ag+ टेकिंग द 2 इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट्स इनटू 2 Ag। इज एनी डाउट, confirm, okay, copper is oxidized to which ion, Cu+2 ion, and Ag+ is reduced to what, Ag, equilibrium greatly flavored Cu+2 and Ag, है ना। तो ये यही फॉर्मेशन बनाएगा, रिवर्सिबल रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। जैसे आगे था, आगे भी हमने टेस्ट किया था ना, हर एक को हम ज्यादा डिटेल्स में एक्सप्लेन नहीं करे, लेकिन आगे हमने देखा था कि ZnSO4 बनने के बाद या ZnSO4 में कॉपर रखने के बाद वो वापस CuSO4 कॉपर का ब्लू कलर दिखाएगा नहीं। आया समझ में। तो यहां तक की बात होगी। बाय दिस वे अगर हम और आगे बढ़े और एक रिएक्शन ले, तो इसमें हमने कोबाल्ट मेटल को लिया है किसके सॉल्यूशन में, निकल, तो निकल का कौन सा सॉल्यूशन ले लिया, निकल सल्फेट, तो वापस वही होगा, कोबाल्ट सल्फेट वाला सॉल्यूशन मिलेगा और Nickel+2 है जो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, निकल। मतलब ये सारे रिएक्शंस जो हमने अभी डिस्कस किए उसमें कोई एक एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो कोई एक क्या कर रहा है, गेन, बट रिवर्सिबल रिएक्शन शो कर रहा
जैसे कि मैं कोबाल्ट वाले कोबाल्ट का कोई सॉल्यूशन है उसमें मैं निकल का रॉड रखूं तो उल्टा रिएक्शन होने वाला नहीं है। आया समझ में? है या ना? So at the equilibrium chemical test to reveal the both Na+2 and CO+2 are present in the moderate concentration. In this case, neither the reactants like copper and Na+2 nor the products and CO2 plus Ni are greatly favored. वो बता रहा है कि रिवर्स रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। CO+2 एंड Ni जो है, देखो यहाँ पे आया CO+2 एंड Ni जो ग्रेटली फेवर्ड होते हैं, मतलब कि रिएक्शन में आपको एज अ प्रोडक्ट कौन मिल सकता है? CO+2 एंड Ni, नहीं कि CO+2 और Ni में से CO एंड Na+2। ओके, तो यहां से हमने जो देखा उससे हमें इतना समझ में आ रहा है कि जब हमको दो मेटल में, खास करके एक मेटल और दूसरे मेटल का पॉजिटिव आयन, या तो फिर वही मेटल और दूसरे मेटल का पॉजिटिव आयन, जस्ट फॉर एग्जाम्पल Zn या Cu+2 आयन या Cu एंड Zn+2 आयन, एक मेटल और दूसरे मेटल का क्या पॉजिटिव आयन कॉन्टैक्ट में लाते हैं, तो दैट इज अ कॉम्पिटिशन टू गेन और लूज द इलेक्ट्रॉन। कोई एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, कोई एक क्या करेगा? गेन करेगा। इन केस ऑफ द फर्स्ट एग्जांपल, जहां पे हमने Zn को किसके कांटेक्ट में लाए थे? Cu+2, जिंक ने अपने इलेक्ट्रॉन Cu को दिए, Cu+2 को, और Cu ने वो गेन भी किए। बट जब मैंने रिवर्सिबल रिएक्शन सोचा जिसमें मैंने Cu को किसका कांटेक्ट में लिया? Zn+2, तो अब Cu अपने इलेक्ट्रॉन Zn को नहीं दे रहा है, तभी तो रिएक्शन नहीं हुआ। मतलब कि ये ले दे वाले की बात एक ही डायरेक्शन से हो रही है। आया समझ में? हाँ या ना? ओके, सो द कंपटीशन फॉर द रिलीज द इलेक्ट्रॉन incidentally remind us the competition for the release of the proton among the acid। जो जल्दी से अपना H+ रिमूव कर देता है उसको स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। याद आया? आया ना? उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। लाइकवाइज यहाँ पे भी कंपटीशन हो रही है टू डोनेट और गेन द इलेक्ट्रॉन। The similarity suggests that we might develop a table in which metal and their ions are listed on the basis of their tendency to release the electron, just as we do in the case of acid to indicate the strength of acid। जैसे एसिड की स्ट्रेंथ के हिसाब से एक टेबल होता है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, फिर उससे वीक, फिर उससे वीक। लाइकवाइज हम यहाँ पे भी मेटल एंड मेटल के आयन का एक टेबल बना सकते हैं, और जो बनाया हुआ है चैप्टर के एंड में, चैप्टर वहीं पे खत्म होगा उस टेबल से। As a matter of fact, we have already made certain comparisons। Okay, कुछ कंपेरिजन तो हमने अभी ही बना लिए। By comparison, जो अभी हमने 3 इक्वेशंस पढ़े, उसमें खास करके हम जिंक एंड कॉपर एंड सिल्वर वाला ले, तो हमने देखा कि जिंक कैन डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन टू द कॉपर एंड कॉपर कैन डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन टू सिल्वर। मतलब कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन द कॉपर एंड कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन द, हो गया एक सीरीज तो बन ही गया आपका, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन द कॉपर एंड कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन अ सिल्वर। ऐसी ही कुछ सीरीजें आपने 10th में पढ़ी थी। कहाँ पढ़ी थी? पढ़ी थी पक्का? कौन से चैप्टर में पढ़ी थी? चैप्टर नंबर 3, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जिसको आपने नाम लिया था रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ द मेटल। ओके, पसा काका, पसा, यहां से पसा काका कार मांगे, है? किससे? अल्लादीन से। तो अल्लादीन जिन के पास गया, जिन होता है ना उसका, तो जिन ने क्या किया? लोहे का लोटा हाथ में लिया। ओके, इसमें 3 एक्स्ट्रा है, चलो अब छोड़ देते उसको। लोहे का लोटा हाथ में लिया, आया समझ में? और उसमें क्या ऐड कर दिया? कुछ तो जादू करना पड़ेगा ना, तो उसने कॉपर लिया और मर्क्यूरी डाला। क्या कर दिया? कॉपर लिया, कॉपर मेटल ली, जैसे मिल जाती है सस्ती वाले, उसमें मर्क्यूरी डाल दिया। क्या डाल दिया? मर्क्यूरी। तो वो चांदी सोना बन गया। सोना चांदी नहीं बोल रहा है, क्या बन गया? पहले चांदी मिला, फिर सोना मिला, जो बेच के पसा काका ने कार ले ली। तो पसा काका को कार चाहिए थी, किसके पास गए? अल्लादीन के पास। अल्लादीन ने जिन को बोला कि तू कुछ कमाल कर, तो जिन ने क्या किया? लोहे का लोटा हाथ में लिया। ओके, फिर उसमें क्या डाला? पहले कॉपर डाला, मेटल डालनी पड़ेगी, फिर मर्क्यूरी डाला ऊपर से, है ना? तो वो क्या बन गया? चांदी। फिर क्या निकला?
सोना, वो बेच के पसा काका ने क्या ले ली, तो हमारा काम हो गया। पसा पोटेशियम, काका कार, दोनों ले लो, कैल्शियम मांगे, ओके, ये मांगे भूल मत जाना, पसा काका कार मांगे, ओके। तो अल्लादीन ने क्या किया, जिंक के पास गया, जिंक आयन लोहे का लोटा, दो लेडा गया, 3 छोड़ दो, हाइड्रोजन हाथ में रखा, उसमें कॉपर डाला, मर्क्यूरी डाला, तो सिल्वर एंड क्या मिल गया, गोल्ड। इस तरह से शायद आप लोगों ने रेडी किया होगा, बाकी वो हमारा पास्ट हो गया। पास्ट हो गया इसका मतलब ऐसा नहीं कि याद नहीं रखेंगे। अपर वाली मैटर एक्टिव मेटल होती है, दैट कैन डिस्प्लेस द लोअर मेटल फ्रॉम द सॉल्यूशन। मतलब अगर आपको पूछा जाए इसमें से लेड मतलब पीबी, ओके, प्लस Zn+2, तो क्या होगा, तो आपको पहला ऑप्शन दिया गया हो Pb+2 प्लस Zn, दूसरा ऑप्शन दिया गया हो Pb+2 प्लस Zn+2, तीसरा ऑप्शन दिया गया हो Pb प्लस Zn, चौथा ऑप्शन दिया गया हो नो प्रोडक्ट, तो आप क्या चूज करोगे? अच्छे से समझ के। उसमें वो पसा काका को याद करना पड़ेगा, हाई रिएक्टिव मेटल ही लो रिएक्टिव मेटल को निकाल सकती है। लो रिएक्टिव मेटल कभी भी हाई रिएक्टिव मेटल को इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे। तो लेड जिन के कंपेयर में हाई रिएक्टिव या लो रिएक्टिव? जीन पहले आ गया था, अल्लादीन जीन, उसके बाद हाथ में लोटा आया, तो जीन इज हाई रिएक्टिव देन द लेड, and that's why lead never give its electron to zinc. That's why reaction not possible. Answer is, तो इसका मतलब ऐसा नहीं 10th में सीखा है तो 11th में एमसीक्यू नहीं बनेगा, बन सकता है, ओके। तो यहाँ पे कोई प्रोडक्ट होगा नहीं, चलो छोड़ फिर। So we would love to make our list more vast and design the metal activity series, or in general it is known as, तो 10th में तो हमने 4, 5, 10 से कंप्लीट कर लिया, लेकिन इसकी पूरी एक सीरीज है जो चैप्टर के एंड में टेबल दिया गया है, आप देख लेना घर पे जाके अच्छे से। The competitions for the electron between the various metals help us to design the class of cell, जो हम पढ़ने वाले चैप्टर के लास्ट टॉपिक में, which is known as galvanic cell, in which chemical reaction become the source of electrical energy. Clear? Okay, चलो धीरे करके आगे बढ़ते। अब टू नाउ हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन के काफी सारे डेफिनेशंस एस्टैब्लिश किए, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, एडिंग ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन, रिमूविंग ऑफ electropositive element, this is considered as oxidation, and reverse of this is considered as a reduction. उसके बाद हमें Na plus H2 give you NaH वाला जो रिएक्शन था उसमें दिक्कत आ गई, तो we have to add one more definition in terms of loss and gain of electron. तो loss of electron considered as oxidation, gain of electron considered as, ऐसा हमने डिस्कस किया। Later on we have some difficulties in a covalent compounds. Which compound? Loss and gain we can easily understood in the ionic compound, but what we can do in the covalent compounds? So we have introduced another new concept for the oxidation and reduction, that is the oxidation number. तो समझते जाओ। Example of the electron transfer is realize that the hydrogen combines with the oxygen to form the what? Water. By the reaction H2 plus O2 give you H2. अब मैं इसमें ऐसा नहीं बोल सकता कि H अपने इलेक्ट्रॉन दे के प्लस पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है और ऑक्सीजन अपने वो इलेक्ट्रॉन लेके नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है और फिर H2O बन रहा है, ऐसा नहीं बोल सकता, बिकॉज H2 इज नॉट आयोनिक, इट्स अ कोवेलेंट वन। विच कंपाउंड? कोवेलेंट। So though it is not simple to its approach, and we can visualize the H atoms going from neutral state to H2, neutral state in a H2 to positive state in a H2O. इतना easy नहीं है क्योंकि यहाँ पे 0 है और यहाँ पे हम बताना चाहते हैं उसको H+. H2 में H को कैसे डिसाइड करते हैं? H+. एंड O एटम गोज फ्रॉम 0 टू, यहाँ पे भी न्यूट्रल है, 0 है, उसमें से क्या बनने वाला है? -2. O2 to a di-negative state in a H2O. It is assumed that there is an electron transfer from H2. अगर ऐसा समझे कि ये 0 में से प्लस बना, 0 में से माइनस बना, तो we have to assume that there is an electron transfer from hydrogen to oxygen. Assume word इसलिए आया because it is in reality is not possible. It is a covalent compound.
वैसे इन रियलिटी कोई भी प्योर आयोनिक और कोई भी प्योर कोवेलेंट कंपाउंड भी नहीं होता है, लिटिल बिट दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, बट जो ज्यादा होता है उसको हम उस तरह के कंपाउंड से ट्रीट करते हैं। बात क्लियर? ओके। देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से अगर देखें हम, तो हम बोल सकते हैं कि H2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ बाय लूजिंग द इलेक्ट्रॉन, एंड दैट्स व्हाई H2 इज ऑक्सीडाइज्ड और O2 इज रिड्यूस। आया समझ में? However, we shall see later the charge transfer is only a partial or perhaps better to describe an electron shift rather than complete loss of electron by the hydrogen or gain by oxygen. H2O जैसे कोवेलेंट कंपाउंड्स में ऐसा बोलना कि हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन पूरा लॉस कर दिया और ऑक्सीजन ने उसको गेन किया, दैट इज द रॉन्ग। हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग हुआ। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने जब पार्टनरशिप की इलेक्ट्रॉन्स के बॉन्ड बनाने के लिए, तो वो बीच में रहना चाहिए था, लेकिन वो शिफ्ट हो गया किसके और? ऑक्सीजन, ड्यू टू द हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और हाइड्रोजन से इस तरह से दूर हुआ। इसलिए उनके ऊपर फुल्ली नेगेटिव या फुल्ली पॉजिटिव चार्ज नहीं, लेकिन पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द डेल्टा। 4th चैप्टर में हमने उसकी बातें की होगी। याद आया? ओके। नहीं याद आ रहा है तो मतलब कच्चा है, कच्चा है मतलब पक्का करना है। समझ में आया? और द मोर टाइम यू विल गिव टू योर स्टडी, द मोर रिजल्ट्स विल कम। जितना आप भागोगे उतना रिजल्ट कम होगा। इट्स नॉट मैजिक, इट्स जस्ट रिक्वायर रिविजन। कोई मैजिक नहीं है साइंस में, कोई हार्ड चीज नहीं है, बट मोर यू रिवाइज मोर यू विल लर्न। आपको समझ में आ जाएगा। देखो समझा रहा हूं तो कितना मजा आ रहा है। हाँ हाँ मजा है, यस समझ में आ गया। इतना इजी है, ऑक्सीडेशन नंबर इजी है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इजी है, बट खुद लिखने बैठोगे कुछ नहीं आएगा। इसका एक ही रीजन है, प्रैक्टिस। समझ में आया? ईच एंड एवरी ईयर मेरी फ्लुएंसी बढ़ती जा रही। क्यों बढ़ती होगी सोचो? मैं एंजॉय कर रहा हूं। शायद मेरी फर्स्ट बैच होगी, उनको इतना एंजॉयमेंट से नहीं पढ़ा होगा। शायद मेरी फर्स्ट बैच को मैंने शायद क्या कंफर्म 2-5 बार देख के रेडॉक्स रिएक्शन बैलेंस करवाया होगा। आज के टाइम में नहीं है। क्यों? 10 साल हो गए मुझे पढ़ाते पढ़ाते। तो वो किसकी वजह से इंप्रूव हुआ? आप फिर सोचो खुद, प्रैक्टिस की वजह से ना। बट मेरे लिए 10 साल हो गए, मेरे को पढ़ाना था। आपको 10 साल चलेंगे, 11th में 10 साल, तो अभी आप 17 के होगे या 16 के होगे, तो 26 को हम 11 क्लियर करेंगे और फिर 36 ईयर को हम 12th क्लियर करेंगे। नहीं चलेगा ना। कभी भी मैं आपके जितना होगा तब मैंने भी तो पढ़ाई की होगी उसके लिए। दूसरा, आप जस्ट कंपेयर करो। टीचर्स तो है ही, टीचर्स का रोल वही होता है, बट कोई एक टीचर अच्छे से कर सकता है, कोई एक टीचर नहीं कर सकता। इसका रीजन, जब वो पढ़ता था तब उसने अच्छे से किया था, एंड दैट्स व्हाई इन अ फ्यूचर he and she will be able to deliver you best. लाइफ आपको कौन से मोड पे ले जाएगी, यू कांट डिसाइड। आपको भले अभी टीचिंग प्रोफेशन से आपको इरिक्शन हो रहा हो, शायद आपके सामने वही रास्ता खुला बचा, तो क्या छोड़ दोगे? करना पड़ेगा। और कभी ना कभी आपको किसी का मेंटर बनना है। ऐसा नहीं कि आप टीचर में आए तभी मेंटर बनोगे। आप कहीं कंपनी में जॉब कर रहे हो तो आप किसी के सीनियर होगे, सीनियर मतलब मेंटर। आप उसको गाइड करोगे, आप उसको सिखाओगे चीजें, बट वो तब पॉसिबल है जब आप खुद ढंग से हो। समझ में आया? अपने आने के वादे जाने के वादे, उसको बोलेंगे तब बोलेगा ए भाई तेरे से अच्छा तो मैं ही कर लेता हूं, भले तू मेरा पोस्ट से सीनियर है। ऐसी गाली खाओगे। बट बंदे में दम होगा तो कोई उंगली नहीं कर पाएगा। समझ में आ रही है बातें? बातें बहुत ही लॉजिकल है, बट प्रैक्टिकल भी उतनी ही है। ये सब यहां से सीख के जाना है। अभी आप इतने छोटे नहीं रहे, 15 ईयर्स के बच्चे नहीं हो। कुछ साल में लाइसेंस आ जाएगा आपका 18 ईयर्स का, बराबर। इतने भी समझदार हो जाओगे कि आप ब्रॉडकास्टिंग कर पाओगे, तो फिर समझ जाओ, ग्रो ग्रो विद द टाइम, है ना। अभी भी वो बचकाना है ना आपके अंदर, वो प्लीज निकाल दो। खेलना कूदना, आई नो दैट इट्स अ पार्ट ऑफ द लाइफ, बट लिमिट में।
वो छोटे बच्चे होते हैं तो कुछ नहीं होता है, टेंशन वगैरह, बट अब तो बहुत बड़ा टेंशन है हमारे सर पे. दिस सिलेबस इज सो टू बिग सिलेबस. आई लर्न माई 12th हाफ एंड 1.5 ईयर कंप्लीटली. 11 तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, हमारे स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता. 4-5 चैप्टर करवा दिए, मोशन वाले, बात खत्म. उस वक्त उतना ज्यादा नहीं था, वहां पे 12th पे फोकस था. अभी वो नीट और जी करना है ना आपको, उसकी वजह से 11th का सिलेबस चाहिए. समझ में आया? अब जून में 12th की प्रिपरेशन चालू करना बेवकूफी. तेरे को मिल गया है ना एंट्री, जो 12th के ग्रुप में एंट्री मांगेगा मैं दे दूंगा. 11th भी करना है साथ में 12th आज से. 1 जनवरी है कल से. जनवरी टू जनवरी मेहनत करेगा वो चमकेगा 12th में. समझ में आया? फिर आप जून तक वेट करोगे, गेम ओवर. तो अभी वो देखो, मैं तो काम आपके ऊपर डाल रहा हूं. अभी आपको 11th का नहीं हो रहा है, आप 12th, मैं कैसे एक्सेप्ट करूं कि आप 12th का भी एडवांस करते जाओगे? आया समझ में? तो ये सब प्रॉब्लम्स है. ये मेरे है ना, ट्यूशन के टाइम क्लास हो जाते हैं दूसरे के साथ. बाकी तो मैं ऐसा चाहता हूं कि जनवरी 1 से 12th में भी सिलेबस रनिंग होता है, वो चैप्टर में आप भी बैठो. मतलब आपको 11th का अलग 1 आवर देना है और 12th में भी 1 आवर, मतलब दिन का 2 आवर देना है. तो अभी भी 12th में 2-3 चैप्टर हो गए ना, तो साथ में दोनों हो जाए. बट आप 11th का होमवर्क नहीं करके बताते हो 12th का भी क्या करोगे? क्योंकि सिर्फ पढ़ना पढ़ना नहीं होता है, साथ में 12th का होमवर्क भी होना चाहिए. 12th का टेस्ट भी देना पड़े उस चैप्टर के रिगार्डिंग. तो मैं कुछ शेड्यूल सेट करूं तो आप कर सकते हो ना, दिन के 2 ओवर. 12th में भी अभी कुछ चैप्टर चालू होंगे जो अभी से पढ़ लेते हैं. दोनों बैचेस कंबाइंड, वी हैव अ स्पेस. तो 12th वालों का भी काम हो जाएगा और आपको 2 ओवर्स कंटिन्यूस पढ़ना पड़ेगा. 1 ओवर 12th का और 1 ओवर 11th का. मैं सोच रहा हूँ काफी सालों से, अगर आप मुझे बीच में ब्रेक हो गया कोरोना की वजह से, अगर आप ग्रीन डंडी दो मुझे तो मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ. वेट करो 5-10 मिनट बाद, बोलो हो सकता है कि नहीं? है ना? फिर देखो बीच में आपकी 11th की एग्जाम भी आएगी, आपका 11th का यूनिट टेस्ट भी आ सकता है ना? जब आप रास्ता ऐसा चूज करते हैं तो तूफानें बहुत ज्यादा आती है, फिर वो तूफानों में डर गए, तो फिर ना 11th के रहोगे ना 12th के रहोगे. ऐसे पहले कॉन्फिडेंटली देख लो, आप वोटिंग दोगे, मैक्सिमम होगा तो वी कैन स्टार्ट, जिनको अलाउ होना है एटलीस्ट. बराबर, सिर्फ मुझे वो बायो और मैथ्स का थोड़ा टाइमिंग का मैचअप करना पड़ेगा, दैट्स आई विल दिस. वो उसमें मैं मेरा माइंड चला के मैं कर लूंगा कंक्लूजन. कर सकते हैं? ओके, देखते हैं. है ना? आप पर्सनली मुझे बता जाना, मुझे ऐसा जनरली आंसर नहीं चाहिए, बट इन बिटवीन आप ग्रुप करके या बातें करके देन यू व्हाट डिसाइड, मुझे बता जाना. ओके, चलो यहाँ पे आए हम. हाँ, so what has been said that with respect to the equations may be true a good number for the reaction, other reaction involving the covalent compounds, that two such examples are the class of this reaction. जैसे H2 plus O2 वाला देखा ना, वैसे covalent compounds में another 2 example है. जैसे H2 plus Cl2 give you 2HCl and CH4 plus 4Cl2 give you CCl4 plus 4HCl. Got it? So in order to keep track the electron shift in the chemical reaction involving the formation of which compound, covalent compounds, a more practical method is using which number. कभी कभी उसको ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोलते हैं कुछ साइंटिस्ट. ओके, तो बोथ आर इक्वल. पहले ऑक्सीडेशन स्टेट वर्ड आया था एंड देन लेटर ऑन कौन सा वर्ड हो गया? ऑक्सीडेशन नंबर. ओके, in this method it is always assumed that there is a complete transfer of electron less electronegative atom to, वैसे होता नहीं है रियलिटी में, पार्शियली शिफ्ट होता है, लेकिन हम ऐसा एजम्पशंस लगा देंगे कि वो इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली क्या हो गए? ट्रांसफर हो गए. क्या हो गए? ट्रांसफर. लेस टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखो तो H2 प्लस O2, यहाँ पे दोनों H है, तो दोनों H है तो कोई किसी भी जगह पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होगा. बोथ आर द सेम एलिमेंट विद द सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड दैट्स व्हाई इट्स अ जीरो ऑक्सीडेशन नंबर. यहाँ पे भी जीरो. बट H2O में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड होगा तो इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट हो जाएंगे, यानी ऑक्सीजन के ऊपर -1 चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर प्लस. ऐसे हाइड्रोजन 2 है तो ऑक्सीजन के ऊपर -2 आएगा, तो +1 -2 क्लियर हुआ. लाइकवाइज H2Cl2 0, बट H and Cl के बीच में जब बॉन्ड बनेगा
तो इलेक्ट्रॉन्स आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स द क्लोरीन, हमारा एजप्शन होगा, वैसे शिफ्टिंग बोल रहा हूँ बट हमारा एजप्शन होगा कि पूरा पूरा निकल गया, उस एजप्शन के हिसाब से सेल ने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो सेल के ऊपर माइनस, हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो प्लस। लाइकवाइज CH4, कार्बन एंड हाइड्रोजन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज कार्बन, कार्बन ने चारों इलेक्ट्रॉन गेन किए 4 हाइड्रोजन से, ऐसा एज्यूम करेंगे। इन रियलिटी तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट भी कम होता है, क्योंकि कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो उतना पोलर नहीं है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं है कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में, बट वी एज्यूम दैट कि भाई थोड़ा सा तो थोड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन का ज्यादा है, वो 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, उसके ऊपर -4, हाइड्रोजन के ऊपर +1, क्लोरीन के ऊपर 0, Cl2 है तो CCl4 में अगेन क्लोरीन हैज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी -1, कार्बन हैज अ पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि 4 क्लोरीन थे तो +4। लाइकवाइज HCl ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन कर लिया है, आया समझ में? So it may be emphasized that the assumptions of electron transfer is made for the bookkeeping purpose only. Electron transfer हम कर रहे हैं वो reality नहीं है, it's for the theoretical work only. Bookkeeping purpose यानी theoretical work only. It will be obvious at the large stage in this unit that it leads to the simple description of which reaction. But हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें आगे जाके किसको समझना है? रेडॉक्स रिएक्शन को, टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन समझना है, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन समझना है, तब हमें जरूरत पड़ेगा किसका? ऑक्सीडेशन नंबर, और ऑक्सीडेशन नंबर में एजप्शन का। तो ऑक्सीडेशन नंबर डिनोट्स द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड एसोसिएटेड अकॉर्डिंग टू द सेट ऑफ रूल्स फॉर्मुलेटेड ऑन द बेसिस दैट इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बिलोंग्स टू द एंटायरली ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, वो हमारा एजप्शन है। आया समझ में? तो यहां से आगे की बात कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर वाले रूल्स की बात, एंड देन लेटर ऑन टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन की बात, देन लेटर ऑन बैलेंसिंग, एंड देन लास्ट में गैल्वेनिक सेल, ऐसे कुछ 2-3 पॉइंट्स बाकी बचे हैं, तो कल हम आगे बढ़ेंगे। ओके, सो इन नेक्स्ट लेक्चर, गुड बाय, टेक केयर।